Symmetric and skew symmetric matrices. Symmetric and skew symmetric. Symmetric and skew symmetric matrices. Very simple part are symmetric and skew symmetric matrices. Here, symmetric and skew symmetric matrices. First, what is a symmetric matrix? Symmetric matrix. What is symmetric matrix? Symmetric matrix. What is symmetric matrix? Very simple symmetric matrix. Here, if you have this matrix A, Aij, n by n, matlab the concept is about only for square matrix. Square matrix. Then this concept is applicable. Symmetric matrix. So what is the concept of symmetric matrix? If each entry Aij is same as Aj, matlab A12 is same as the entry at the A21, A13 is same as the entry at the A31, A23 is same as the entry at A32 for each I and j, for all or each I and j. We can say that the two matrices are for all I and j. Matlab what? Suppose I have the matrices. Example. If I write here 1, I write here 5 and I write 7, diagonal entry. But if I write here 3, I have to write 3 here. A12, A21. If I write A13 as a 8, then A13. I have to write 8 here, A31. If I write here -3, then I have to write -3. The entries are similar. Matlab A12. A12 is A21. A13 A31. A23 is A32. And there is no question of A11, A12, A22 and A33. A11 will be A11. I and J are same. The question arises after for I and J are not equal. So this is the example of symmetric matrix. Symmetric matrix. See the entries along this diagonal. 3, 3, 8, 8, -3, 3. So it is called a symmetric. When we fold the matrix along the diagonal, you will get the same entry, overlapping entries same. Overlapping entries are same. This is our interpretation. Another interpretation for the symmetric matrix is that this is a definition. It is a definition. Now, what is the another interpretation? Observe that if you, this is a matrix A, take the transpose of this matrix A dash, this matrix. You will get the same matrix. What? Here, 1, 3, 8. First row will become first column. Second, 3, 5, -3. 3, 5, -3. Third row, 8, -3, 7. You are getting matrix A. Matlab when transpose of a matrix and matrix are itself, then we can say that the matrix is symmetric. This is another way of defining the symmetric matrix. Aij is same as Aj. Aij is same as Aj. Taking transpose, if you are getting the same matrix, then we say that the two matrices, the given matrix is a symmetric matrix. Any doubt regarding the symmetricity of a matrix? Means symmetric matrix concept depend on transpose of matrix. Hello. Anybody has a doubt?
क्वेश्चन अब बोलो, विच स्टेप बोलिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। You can unmute yourself. सर वो आपने लास्ट क्वेश्चन लिया था ना, वो उसमें सर वो सिर्फ स्टेप्स बता ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वो वाला क्वेश्चन। उसमें क्या करना है मालूम है आपको? पहले ए और बी का प्रोडक्ट लेना है, पहली स्टेप। पहली स्टेप क्या होगी आपकी? ए बी का प्रोडक्ट। हाँ। फिर सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? ए बी प्रोडक्ट जब आएगा तो उसका ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, वो आने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 बोलने। अब थर्ड स्टेप आपको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अलग अलग फाइंड करने। ओके, फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको? बी ट्रांसपोज को पहले लेना है और उसको ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा फोर्थ स्टेप। हुआ, उसको इक्वेशन 2 कहना है। और 5 नंबर में आप देखो, दोनों और चौथा स्टेप इक्वल आता है, 1 और 2 को इक्वेट करना पड़ेगा, फिर 2 और 4 इक्वल हो जाते हैं। ऐसा 1 और 2 इक्वेशन को इक्वेट आते ही वो इक्वल, उनका आरएचएस इक्वल आता है, इसलिए उनके एलएचएस को हमको इक्वेट करना है। हो गया हमारा काम। और कुछ? ओके सर, वो मेरा ए बी का ट्रांसपोजल हो गया था, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हो गया था, बस मल्टीप्लिकेशन बाकी था। थैंक यू सर। उल्टा करना है, पहले बी ट्रांसपोज करना है, देन ए ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड का। ओके सर, कर लूंगा। थैंक यू। अभी सामने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं सर, उसमें कोई नहीं। बहुत सिंपल है। सिमेट्रिक मतलब बिल्कुल नहीं दूसरा सर। एक मेथड है, ट्रांसपोज लिया तो वही आता है, मतलब ए आई जे सेम एज ए। वेरी गुड, थैंक यू। Either anybody has any doubt? No. No. Okay. ठीक है, let us continue. तो ये था हमारा ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब AIJ is same as AJI. Entries देख लीजिए, entries in the first row and first column. There is no question of entries in the first row and first column. There is a question of entries of first row and second column. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एंट्रीज को आप चेंज करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो दोनों एंट्री सेम रहेंगे। देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हम जाएंगे थोड़ा सा आगे एक दो एग्जांपल में जिसमें आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने हैं, फिर हम थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करेंगे। क्लियर? हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझे, मेरे पास और एक मैट्रिक्स है 1 5 3 और 3। इज इट सिमेट्रिक? यस, it is symmetric because A12 is same as A21, which is 3. So we can say that this is a symmetric matrix. Yes, it is a symmetric matrix. Another way to show that it is a symmetric, another way, take the transpose. This is the first way. Second way, how will you show it is take the transpose. 1 3
3 5, you are getting A, therefore A is symmetric. So these are the two ways that you can say that the two matrices are symmetric. Okay, A12 and A21 are same. A11 and A22, there is no question. Again, the geometrical way. Take this diagonal and fold the matrix. The entries, overlapped entries are same. 3 and 3 will overlap. So by observation, you can say that this matrix is symmetric or not. Again, one of the example of symmetric matrix. Here I have the matrix 1 5 9 0 0 0 0 0 0. Yes, it is always symmetric. Diagonal matrix is always symmetric. Diagonal matrix always symmetric. Here, diagonal matrix is always symmetric. Diagonal matrix जो होता always symmetric. अब मैं इसमें थोड़ा सा वर्ड बदलता हूँ. मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ 3 3 3. तो ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स. स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स, इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक. स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक. स्केलर मैट्रिक्स की जगह मैं वर्ड बदलूंगा. ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है. अभी स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक. हम और एक वर्ड बदलेंगे. ये 2/2 के लिए भी रहता है. 2/2 के लिए 3 3 0 0 सिमेट्रिक. डायगोनल का भी 2/2 का डायगोनल भी सही था. डायगोनल 1 5 0 0 डायगोनल डायगोनल था सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब हम क्या करेंगे, स्केलर, तीनों स्केलर को 1 1 1 करेंगे. इसके दोनों को 1 1 1 1 1. तो ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये हुआ I2. ऑर्डर है 2/2 3/2. तो यूनिट मैट्रिक्स, उसको कहते हैं यूनिट आइडेंटिटी, is always symmetric. These are the example of some matrices which are always symmetric. And there are particular examples. Okay. Again, one of the example of square matrix. What will be this? Very interesting example. All entries are 0. It is a symmetric matrix. Yes, अगर हम definition से गए तो symmetric भी है. चलो हम जाएंगे. ये था जीरो मैट्रिक्स. इसके बारे में नहीं ज्यादा चर्चा. Symmetric matrix. You got the concept of symmetric matrix. What is of symmetric matrix use? Symmetric matrix का यूज क्या होता है? अगर ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक है या नहीं चेक करना है. हम A प्लस A ट्रांसपोज ले लेंगे. A प्लस A ट्रांसपोज, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये A प्लस A ट्रांसपोज आना चाहिए. अगर ये सिमेट्रिक है तो उसकी वैल्यू A प्लस A ट्रांसपोज आनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. क्या ये वैल्यू आती है? नहीं. प्रूफ. अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज, अगर आपको A प्लस A ट्रांसपोज आता है, देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लेफ्ट साइड लेंगे A प्लस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज. अभी हमने ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी देखी है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज. ये ट्रांसपोज अंदर आता है और ये होता है ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज. यूजिंग
ए प्लस बी ट्रांसपोज, जिसको समझने के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस लगता है। ये हुआ और ये भी हुआ। अब हमने मैट्रिक्स के एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी, ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए। तो इसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के सामने आता है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी, ये जरूरी नहीं सिमेट्रिक, कौन से भी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कीप इन माइंड। फिर से बताते हैं हम आपको। सर Let फुल us स्क्रीन tell, दिखाइए ना प्लीज। हाँ मैं पूरा बताता हूँ, अपनी स्क्रीन ही इतनी है, ये अंडरस्टैंडिंग की स्क्रीन है, जैसे हम पैड पे पढ़ाते बच्चों को ऐसी। फिर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, समझे, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। चलो, अगर ये ट्रांसपोज लिया हम, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन है और उसका ट्रांसपोज है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज, उसमें कुछ बदलने के यूज दी। तो हमने क्या किया, ये के जगह है और ये बी के जगह है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ये पहली स्टेप के लिए रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन। अब हम जाएंगे आगे की स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। ए ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज ही होता है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हुआ ए, उसके लिए रीजन है, ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज ए, पहला रीजन है। अब ये दो मैट्रिक्स का एडिशन है, तो मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, हम पहले उसको ए को लिखेंगे, बाद में ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी इज बी प्लस, ए की जगह ए ट्रांसपोज आया और बी की जगह बी बी ए ट्रांस बी आया, ए आया, ऐसा समझो। तो व्हाट यू गेट, दीज आर द थ्री रीजन। इसका मतलब आपने क्या फाइंड किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ गया। जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आता, तो उसे कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको वही मैट्रिक्स आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? तो फॉर एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है इज ऑलवेज सिमेट्रिक। जरूरी नहीं ये सिमेट्रिक हो या ना, ये की कोई जरूरी नहीं हो सिमेट्रिक हो या ना हो, नो कंडीशन मैट्रिक्स है, ये सिर्फ स्क्वायर चाहिए। ओके, टेक इन कंसिडरेशन ऑल द स्टेप्स एंड वेरीफाई वेदर यू कैन गेट। आपको एक वेरीफाई करना है, एक एग्जांपल ले, हम भी करेंगे अभी। For any square matrix, if you add its transpose, you will get a symmetric matrix. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। एग्जांपल, have you written all these things? यस सर, हो गया। ठीक है, when you take the any matrix, हम उसका एक एग्जांपल देते हैं, a equals 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो ये 3 अलग है, 2 सिमेट्रिक नहीं, बट उसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 4। अब हम एक नया मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, उनको ऐड करके दोनों को, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो एडिशन मालूम है आपको, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा, और 4 प्लस 4 8 होगा। देखो ये सिमेट्रिक है क्या नहीं, देखो ये आने वाला मैट्रिक्स, फिर से देखिए 1 2 3 4 मैट्रिक्स। एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, ए इज व्हाट 1 2 3 4,
तो ये ट्रांसपोज क्या होगा, ऐसा 1 2 3 4। फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ना, ये एंट्री सेम है, सिमेट्रिक। अब बोलो, मतलब फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यू आर गेटिंग द, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, चलो दूसरा कोई। एनीबॉडी अदर? No, sir, you can continue. तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करने के बाद हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। तो टू फाइंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वी रिक्वायर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको ऐड करो, आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अभी ये था मेरा 2x2 का एग्जांपल। एक 3x3 का एग्जांपल अगर देखें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है। समझो मेरे पास मैट्रिक्स है 1 4 5 3 8 9 -3 4 5। देखो ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो ये एंट्री 4 है 3 है 5 है माइनस, ये कुछ भी सिमेट्रिक एंट्री नहीं है। दो दीज आर नॉट सिमेट्रिक एंट्रीज। ये 4, मैं इसको 8 लेता हूँ, 8 नहीं 7 लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ए जो है ना, उसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं और दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो हमें सीधा ए मैट्रिक्स मिल जाता है 1 4 5 3 8 7, ये 4 है मेरा, फिर -3 4 5। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का ऐड तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ये प्लस ए ट्रांसपोज। दो ऐड करने के बाद ऑल ऑफ यू नो दैट वी ऐड द फर्स्ट एलिमेंट, पहले रो का पहला 1 + 1 2, 4 + 3 7, 5 - 3 2। अब सेकंड रो में ऐड होगी 3 + 4 7। देखो सिमेट्रिक एंट्री आ रहा है। 8 + 8 16, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। 7 + 4 11, -3 + 5 2, देखो सिमेट्रिक एंट्री आ गया। 4 + 7 11, देखो सिमेट्रिक एंट्रीज आ गए। और 5 + 5 10। तो देख लीजिए, तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो जरूरी नहीं है सिमेट्रिक। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ऑब्जर्वेशन से आप लिख सकते हो कि सिमेट्रिक है, उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं। ऑब्जर्वेशन है ना, ये 7 7 8 2 2 है, ये इक्वल है बिकॉज ऑल ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, A12 A21, A13 A31। देखिए हम अगर लिखना चाहते तो A12 इज A21 which is 7, A13 same as A31 which is 2, है ना। अगर हम लिखना चाहते हो, if we are interested in writing these entries in this way, A31 A23 will be A32 which is same as 11, अगर हम लिखेंगे तो this is the reason with example, a counter example, that A plus A transpose is always symmetric. A plus A transpose is always symmetric. अब हम जाएंगे A और A ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन। ये आपको देखना है चेक करके। तो हमने देखा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A and its एडिशन ऑफ द ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, ये सिमेट्रिक है और एक है A into A ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ और एक मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज इनटू A, ये भी सिमेट्रिक है। दीज आर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A प्लस A ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक है, A इंटू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, A ट्रांसपोज इंटू A सिमेट्रिक है। पहला प्रूव किया हमने, पहले के काउंटर एग्जांपल भी लिए। अब हम दूसरा प्रूव कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, A ट्रांसपोज। उसको सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब उसका ट्रांसपोज हम फाइंड करें। वो ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगर हम वही मैट्रिक्स मिलता है, we say that this is a symmetric matrix। चलो हम प्रोसीड करेंगे। तो पहले अभी ये प्रोडक्ट का ट्रांसपोज होता है, तब हम कैसे करते थे, प्रोडक्ट के ट्रांसपोज में क्या होता था, मेरे पास रीजन है
ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यूज दिस रीजन। तो ये हुआ, ये बी हुआ, तो ये पहले आएगा ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, किंतु ये दूसरा जाएगा ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लगा के। दिस इज द रीजन साइड, ये रीजन है। अब हमको फिर से जाना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है और ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है। रीजन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। यू आर गेटिंग द सेम मैट्रिक्स। व्हाट डज इट मीन? ये सिमेट्रिक हुआ, ये भी प्रूव हुआ, लिख दो ये प्रूफ। For any square matrix A plus A transpose A transpose and A dash A transpose A, all are symmetric matrices. With reason you should write. अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि सच में ये और ए ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी दो मैट्रिक्स का, ये सिमेट्रिक आता है या नहीं, चेक करना बहुत जरूरी है। और ये रिमेनिंग पोर्शन आपके लिए मैंने रखा है, इसको चेक भी करना और इसका एग्जाम्पल भी आप चेक करेंगे, ठीक? तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रूव करने के लिए आपको रखा है एज योर ओन। आप प्रूव करोगे, ये आपका होमवर्क। प्रूव दैट ए ट्रांसपोज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एग्जांपल लेंगे, ए इक्वल 2/2 कर लेंगे, 1 2 4 5। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांसपोज होगा हमारा 1 2 4 5। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों भी करेंगे, ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज, ये ट्रांस, इसका काम आपका कर देते हैं हम आज। 1 2 4 मल्टीप्लाई करो, ये 1 इंटू 1 1 2 2 जार 4 5 आया, 1 इंटू 4 4 and 2 5 जार 10, ये 14 हुआ। ये 4 इंटू 1 4 आया, 5 2 जार 10, ये 14 हुआ। ये 4 4 जार 16 और 5 5 जार 25, तो 31 हुआ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। अब आप ए ट्रांसपोज ए निकालो, आप 3/3 में भी कर लो, एक 3/3 ले। So in this way we obtain the some properties of symmetric matrix. मतलब दो मैट्रिक्स हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स, उनका एडिशन सिमेट्रिक रहता है। उनका कौन सा एडिशन? मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट सिमेट्रिक रहता है। ओके, इसके लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना नॉट नेसेसरी। ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स रहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी से जाना पड़ता है। तो सिमेट्री के कौन कौन से प्रॉपर्टी हमारे पास आ गए? सिमेट्रिक, पहले हमने देखा सिमेट्रिक मतलब क्या, ए आई जे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सिमेट्री। और सिमेट्री है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स के लिए चलती है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। दूसरा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तीसरा, ए प्लस बी का जब आप ट्रांसपोज करते तो ट्रांसपोज का एडिशन करना है जगह पे। चौथा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते तो उल्टा होता है। पांचवा, जब हमारे पास तीन मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, तो आपको उसको लिखना है इस तरह से, रिवर्स ऑर्डर में, ट्रांसपोज में। ये हमने लिया। देन उसके बाद में हमारा कौन सा पॉइंट हुआ? दिस वेर द पॉइंट्स वी कवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट है,
फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला पॉइंट है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक हो गए तो हो गए, बट नहीं भी हो गए तो भी ये अगर सिमेट्रिक है तो ये होने वाला है, बट अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो भी सिमेट्रिक। दूसरा ए ट्रांसपोज, और तीसरा ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। ये तीनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हमने प्रूव किया। ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। Many things related with the Sir, get the call, I think. Please wait, participant. Now these are the three important for not a symmetric but a square matrix. Their transpose and the matrix product and their transpose and the matrix addition is a symmetry. We can verify by some examples also. And these are the properties of symmetric matrices. If the transpose is transpose matrix, ये transpose के property जो symmetric में काम आते हैं हमें use करने में properties. So here हमारे पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, अगर समझे मेरे पास मैट्रिक्स ए ये सिमेट्रिक और बी भी सिमेट्रिक, दोनों सिमेट्रिक है, मतलब हमारा मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज ए हुआ और मतलब क्या हुआ, बी ट्रांसपोज बी हुआ। एक्चुअली ट्रांसपोज से हमें सिमेट्रिसिटी मैथमेटिकल इक्वेशन। हम अगर ए बी मैट्रिक्स लेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, तो चेक करेंगे ए बी मैट्रिक्स लेंगे, ये सिमेट्रिक से होने के लिए हमें ये क्या चाहिए, इक्वल टू ए बी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, फॉर्मूला है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपका बी ट्रांसपोज क्या हुआ, बी, और ए ट्रांसपोज क्या हुआ, ये, यूजिंग दिस। बट बी ए इक्वल टू ए बी है का हमारा, ए एंड बी सिमेट्रिक है, तो ये भी इक्वल टू बी है, हमें मालूम है क्या, नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन ए बी। इफ ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, तो कोणाला जब सांगतो नाही, जास्त शहाणपणा नको करू. बसायचं तर बस, नाही तर नको बसू. yes, symmetricity of product depends on the commutativity of the matrices. ए एंड बी सिमेट्रिक होने के बाद प्रोडक्ट सिमेट्रिक होगा अगर ए बी और बी ए इक्वल होंगे तो। इफ, तो कंडीशन है इसमें ये, तो ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली अगर
ए बी इक्वल्स टू बी ए इस केस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड यू वर गिवन सम प्रॉब्लम्स बीच में, तो अब ये थ्योरी कंप्लीट करो। कंप्लीट करनी है, कंप्लीट, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। कंप्लीट इसको रिवाइज करो। आपको साइमल्टेनियसली लिखना चाहिए, हमने बार बार कहा है। टुमारो विल सी द नेक्स्ट लेक्चर कभी होगा तो हम देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट आप लोग